This is Ayaz Hussain Mashudi, PMS officer in Sindh government. Today I am going to start a session on English portion of CC 2021 screening preparation. And for this, let me tell you one thing, that in English portion of CC 2021 or any CC exam before this, you will find around 8 to 10 words for synonym and antonym for English in English portion, right? There can be 8 to 10 words that include synonyms and antonyms as well. So for out of 20 marks portion in CC 2021 in English, you will get marks of 8 to 10 in this portion. So it's very important that we must work on English vocab as well, and we must focus on English vocab at least for this time, because you have not enough time to prepare for English portion or overall CC 2021. Let's come towards this. Here I have written that's mnemonic techniques. You must have heard about mnemonic techniques. Mnemonic is anything related to the memory, right? So here we will try to apply the mnemonic techniques to cram the vocab in this short period of time to get maximum score in this English portion of CC 2021. Let me tell you. See, there are some theories that our mind does not think in data or in facts. It thinks in pictures or images, psychologically if you see it, right? So let me tell you one thing, that it is very famous even in the field of journalism, that when a dog bites a man, it is not news. But when a man bites the dog, it is called news. So something very strange can attract the human mind, right? That's why such things can be crammed easily, because they are very strange. So we have to make this vocab, cramming this vocab, something strange. If we will be able to make it strange, we will be successful to cram it easily and for all the time. And I will tell you the source as well, right? Let me tell you the source as well, from where I used to prepare for the vocab. Majortest.com. This is a website where you will find vocab list of GRE. Let me tell you why this is important. Even you can follow any other website or any other source of vocab you may find. But let me tell you one thing that is very important here, that there are 3,500 GRE words. And out of these 3,500 words, it's very hard to remember or cram in this short period of time. And even when you will download the GRE vocab list, it will start like from A to Z, right? और आपको ये बता दूं कि A to Z में होगा क्या, कि आपको 1000 वर्ड तो A के मिल जाएंगे, और it will be very confusing for your mind to cram all the words with A, right? तो इस तरीके से मैंने एक चीज नोट की इस वेबसाइट में, जो जिसने मुझे बड़ा हेल्प किया था. लेट मी टेल यू वन थिंग, कि बैक इन CC 2013 स्क्रीनिंग, जो बड़ी मुश्किल तरीन रही थी इस स्क्रीन में, और आउट ऑफ 50,000 पीपल ओनली 800 प्लस को क्वालिफाई द टेस्ट, और उसके बाद फिर ग्रेस मार्क्स मिली तो लोग 3000 से ज्यादा बढ़ गए थे. तो आई वाज अमंग दैट 800 पीपल, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंग्लिश, आई बिलीव. और उसमें से जो मैंने vocab याद की थी, और वहां से यहाँ इस सोर्स से याद की थी, और सारी लग गई थी. लेट मी टेल यू कैसे. इसमें है क्या, स्पेशलिटी क्या है इसमें, कि देयर आर 15 लिस्ट, 15 लिस्टें हैं vocab की, और उन 15 लिस्टों में हर लिस्ट जो है ना वो 100 वर्ड्स की है, और जो 100 वर्ड्स है ना उसमें 10 ग्रुप्स आते हैं, और हर ग्रुप जो है ना वो A to Z है. मतलब 10 वर्ड का एक ग्रुप होगा, ठीक है, A to Z होगा, कोई A का वर्ड होगा, कोई D का होगा, कोई F का होगा. तो हमारा माइंड जो है ना वो डिफरेंट चीजों को एक्सेप्ट करता है, और सिमिलर चीजें आती है तो वो कंफ्यूज होता रहता है. तो इसी वजह से दिस इज अ वेरी गुड सोर्स, और आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको टारगेट बना लें. इन दिनों में टारगेट ये बना लेंगे, डेली आप 100 वर्ड्स कर सकते हैं इफ यू बिलीव सो. अच्छा, ये भी चीज नोट कर देना, आई एम नॉट हियर टू टेल यू हाउ टू इंप्रूव योर इंग्लिश. अब ये हमारा इंग्लिश से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ इस बुनियाद पे कि हमें अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है और अपने इन वोकेब को अपनी लैंग्वेज का पार्ट बनाना है. दैट्स समथिंग एल्स, उस पर हम कभी और बात कर सकते हैं. लेकिन अब हमारा फोकस ये है कि ये जो स्क्रीनिंग आ रही है, इसमें ये जो 8 और 10 मार्क्स की वोकेब आ रही है, वो हमारे सिनोनिम और एंटोनिम लग जाए. दैट्स अवर गोल, राइट? तो इसी हिसाब से हमने वोकेब को याद करनी, और ये जो 100 वर्ड्स है ना, ये आपको याद करने इन टेक्निक्स के साथ, निमोनिक टेक्निक्स के साथ. इसके बाद आपको हमेशा याद रहेंगे. लेट मी टेल यू कि ये निमोनिक टेक्निक्स होती क्या है. देखिए, सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि when a man bites a dog, it is not news. When a dog bites a man,
इट्स नॉट न्यूज, बट व्हेन अ मैन बाइट्स द डॉग इट इज न्यूज। तो ये एक अजीब है ना, स्ट्रेंज चीज है। तो स्ट्रेंज चीजें जो है ना वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, हमारा माइंड जो है ना स्ट्रेंज चीजों से अट्रैक्ट होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेंज कैसे करते हैं वोकैब को याद करने के लिए, इमेजेस में कन्वर्ट करना है हमने। तो दो तरीके हैं, एक फॉर्मल वेज है वर्ड्स को याद करने के, और दूसरे इनफॉर्मल वेज हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनफॉर्मल वेज आर फॉर बेटर देन फॉर्मल वेज इन क्रैमिंग द वोकैब। लेट मी टेल यू हाउ। ठीक है, फॉर्मल वेज किसे कहते हैं? जिसे हम कहते हैं रूट वर्ड्स। अब ये रूट वर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी वर्ड के जो ओरिजिन के पार्ट्स होते हैं ना किसी वर्ड के, उसे हम रूट वर्ड्स कहते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं? प्रीफिक्स मिलाते हैं, सफिक्स मिलाते हैं, और इस तरीके से जो है वोकैब बिल्ड होती रहती है। तो आप इन रूट वर्ड्स पे फोकस करके भी बहुत सारे वोकैब याद कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड में। आपने ऐसे समझ लिया कि 50 से 100 रूट वर्ड्स याद करें तो आपके 400-500 वर्ड्स वैसे ही याद हो जाएंगे। शॉर्ट में कुछ एग्जांपल दे देता हूं, देखें रूट वर्ड्स में। यहां पे मैं लिख देता हूं, आपने एग्री वर्ड याद कर लिया। एग्री का मतलब होता है बिटर, ये रूट वर्ड है। अब इसके साथ अगर आप सफिक्स लगाएं, प्रीफिक्स लगाएं, एक्रीमनी बन जाता है, एक्रीमनी, एक्रेड, एक्रेडिटी, राइट, एसिडिटी, इस तरीके से आप वर्ड्स बनाते जाएंगे। या लम वर्ड है, LUM, लम मीन्स लाइट को कहते हैं। ठीक है, फिर ल्यूमिन बन जाता है, ल्यूमिनरी बन जाता है, ल्यूमिनस बन जाता है। ठीक है, माल और मेल, MAL मीन्स बेड, तो इसे हम मैलिग्नेंट वर्ड है, मेल फंक्शन वर्ड है, मेलाइस वर्ड है, तो बेड से रिलेटेड इनकी मीनिंग आती है। जैसे टेली होता है, टेली का मतलब होता है फार, तो टेलीफोन क्या होता है? जो दूर से आवाज आए। टेलीविजन क्या होती है? जो दूर से तस्वीर आपको नजर आ रही होती है। टेलीपैथी होती है जो एक्स्ट्रा सेंसरी अपना आर्गन से आपकी जो है ना इंफॉर्मेशन जो कन्वे होती है। जूड, JUD, जूड वर्ड का मतलब होता है इंसाफ या जज करना। जुडिशियल, जुडिशरी, जुडिशियल। डायना वर्ड का मतलब होता है पावर, तो डायनामिक, एरोडायनामिक्स, जेनेसिटी। तो इस तरीके के वर्ड्स इस तरीके से बनते रहते हैं। तो ये होते हैं फॉर्मल तरीके। इस तरीके से आपको क्या करना है कि कम से कम 50 से 100 रूट वर्ड्स याद कर लें और आपको बहुत सारे वोकैब याद हो जाएंगे। ये तो एक फॉर्मल तरीके। आते हैं अभी इनफॉर्मल तरीकों पे। अब देखिए इनफॉर्मल तरीकों में होता क्या है कि मैं इसे कहता हूं एसोसिएशन टेक्निक। आपको क्या करना है कि चीजों को, जो वर्ड्स आपके पास जो मुश्किल लग रहे हैं आपको, आपने उसको एसोसिएट करना है। लेकिन किस चीज से एसोसिएट करना है ये याद रखना। देखिए होता कि हमारे माइंड में ना मेमोरी दो किस्म की होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है और दूसरी परमानेंट मेमोरी होती है। जो चीज हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो हमारी टेम्पररी मेमोरी का तो पार्ट बन जाती है। लेकिन अगर हम उसको दोबारा पढ़ना, ऑब्जर्व करना या देखना छोड़ देते हैं तो वो हमारी टेम्पररी मेमोरी से भी डिलीट हो जाती है। तो अक्सर जो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है ना, वो वही टेम्पररी मेमोरी जब रिपीटेड फॉर्म में आती है तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाती है। दिस इज हाउ आवर माइंड फंक्शंस, राइट। देखिए जैसे आप शहर चले गए किसी गांव से, शहर से फिर आप घर आ रहे हैं, तो रास्ते में आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी, आपने लोग देखे, चीजें देखी, बट वो सारी चीजें आपके माइंड में स्टोर नहीं हो रही होती, वो डिलीट होती जाती है। लेकिन अगर उनमें से किसी चीज को आप रिपीट करना चाहें या दोबारा दोबारा बार बार देखेंगे तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बनते जाएंगे। हमने क्या करना है, जो नए वर्ड है, जो नई चीजें हैं, यहाँ पे वो नई चीजें आपकी वोकैब है, वो नए वर्ड्स आपने क्या करना है, उन चीजों को अपनी जो परमानेंट इंफॉर्मेशन किसी भी चीज से रिलेटेड हो, लोग, बिल्डिंग, चीजें, जो आपकी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन और मेमोरी का पार्ट है, उसके साथ आपने लिंक करना है, एसोसिएट करना है। फिर क्या होगा, जब लिंक हो जाएगी तो आपकी वो चीज भी परमानेंट बनती जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए कुछ जीआरई की वर्ड्स मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक जीआरई का वर्ड है बिल्क। अब आप सोचें बिल्क से रिलेटेड आपको कौन सा आवाज समझ आ रहा है, आपके माइंड में आ रहा है, आपके एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से। होपफुली आपको आपके जहन में मिल्क वर्ड आ रहा होगा, राइट। बिल्क इज टू मिल्क। अब आपने क्या करना है, देखें पहले बिल्क की मीनिंग आपको पता हो, उसके बाद आपने वो चीजें ढूंढनी, अदरवाइज वो लिंक अच्छी नहीं लगेगी। मुझे पता है, पहले मैंने मालूम किया कि बिल्क का मतलब होता है धोखा देना, टू चीट, राइट। अब मैंने कहा यार इसका मतलब धोखा देना है, इससे रिलेटेड आवाज मिल्क आ रही है, तो अब कैसे लिंक करूं। तो फिर मैंने कहा ऐसे करते हैं कि भाई जो मिल्क बेच रहा है बंदा और वो मिल्क में डालता है पानी, तो क्या करता है हमारे साथ, धोखा करता है। तो बिल्क का मतलब भी क्या हुआ, धोखा। नाउ यू विल नेवर रिमेंबर फॉरगेट दिस वर्ड। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
पगनाशियस, देखिए पगनाशियस का मतलब होता है क्वेरलसम, जो बंदा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, ठीक है, लड़ता है। अब इसको आप इस तरीके से याद करें, देखिए पगना से आपको उर्दू वाला पंगा वर्ड याद आ रहा है कि भाई पंगा मत लेना मुझसे, ठीक है। तो अब याद कर ले, पंगा जो लेता है वो हमेशा लड़ता रहता है, हमेशा किसी न किसी पंगे में होता है। तो पगनाशियस वर्ड का मतलब ये जो लड़ाई करे, क्वेरलसम हो, ठीक है, इस तरीके से। मैं दूसरा एग्जांपल और देता हूं। एक्सट्रिपेट वर्ड आपने सुना होगा, बड़ा जीआरई का मशहूर वर्ड है। अब देखिए एक्सट्रिपेट का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली किसी चीज को रूट से निकाल देना, डिस्ट्रॉय कर देना। इसको आप क्या करें, एसोसिएट, अगर डायरेक्ट वर्ड हो रहा है तो डायरेक्ट कर दें, वरना आप ब्रेक करके भी एसोसिएट कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से ब्रेक करें, एक्स्ट्रा प्लस पेट, एक्स्ट्रा प्लस पेट। एक्सट्रिपेट बन गया आपके दो वर्ड्स में, एक्स्ट्रा प्लस पेट, कि भाई एक बंदा है वो बड़ा मोटा बंदा है, राइट, उसकी तमी निकल आई है, तो वो कह रहा है जो एक्स्ट्रा पेट है ना मेरे पास, उसको तबाह करना है, उसको रूट से निकालना है। तो रिमेंबर कि अब एक्स्ट्रा पेट का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज को रूट से निकालना, सर्जरी के साथ खत्म करना, या किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। इन दिस वे आपको ये फील हो रहा होगा कि ये चीज अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। और भी एग्जांपल देता हूं, देखिए किंडल वर्ड है। किंडल वैसे आपको समझ नहीं आ रहा, किंडल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ फायर, लेकिन किंडल से रिलेटेड आपको कैंडल आपके माइंड में आ रहा होगा साउंड। तो कैंडल भी क्या होती है, वो फायर होती है कैंडल से रिलेटेड। तो कैंडल का मतलब भी होता है टू स्टार्ट अ फायर। एक और वर्ड है पायर, PYRAE, ये भी जीआरई का वर्ड है। देखें पायर का मतलब होता है ये जो सेरेमोनियल फायर होती है ना, जब डेड बॉडीज को जलाया जाता है, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स में, तो उसे पायर कहते हैं। अब पायर से रिलेटेड आपका साउंड आ रहा है फायर, किसी डेड बॉडी को पायर नहीं, फायर कर दिया, मतलब फायर लगा ली, आग लगा ली। तो इस तरीके से ये वर्ड आपको याद रह जाएगा। सरली एक वर्ड है। अब देखो इसको याद करने का तरीका ये है कि इसको भी ब्रेक कर ले आप। एक सर्व है, उसका नाम है ली, वो बड़ा रूड किस्म का बंदा है। सरली जो है ना वो बड़ा रूड किस्म का बंदा है, किसी के साथ भी बेहतर जो है ना वे में पेश नहीं आता। तो सरली का मतलब भी होता है रूड बिहेवियर, वो जो रूड बंदा होता है उसे कहते हैं। और भी कुछ मिसाल देता हूं आपको, इसको ऐसे करते हैं, हाँ, रूमिनेट, ये भी जीआरई का वर्ड है। देखो इस तरीके से याद करें, इसको ब्रेक करते एसोसिएट करते हैं। रूमी आपको याद आ रहा होगा, इस तरीके से करें। रूमिनेट का मतलब होता है किसी चीज पे सोचना, पांडर करना, राइट, थिंक अबाउट समथिंग। तो रूमी क्या काम करता था, रूमी हमेशा बैठ के सोच रहा होता था। बस इस तरीके से याद कर लें कि रूमी ने ना बैठ के सोच रहा था, तो रूमिनेट से आपको याद आ जाएगा सोचना, पांडर करना, रूमिनेट। और भी एक मिसाल दे देता हूं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड था, कभी मुझे याद नहीं आ रहा था, जीआरई का, इंशराउद। तो मैंने क्या कि यार ये किसी लिंक से नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे इसकी लिंक बनानी है। इसका मतलब था कवर करना, टू कवर, ठीक है, किसी चीज को ढांप लेना। मैंने इसको ब्रेक किया, EN और शराउड। मैंने कहा ये EN इसको हम कर देते हैं आयन, शराउड से रिलेटेड साउंड मिलता है शराइन। इन श्राइन, श्राइन में हम क्या करते हैं, किसी चीज को मुकबरा बना देते हैं, किसी चीज को कवर कर देते हैं, किसी के कवर को। तो इन श्राइन का मतलब क्या हो गया, कवर। नाउ इन दिस वे आपको ये वर्ड भी कभी आप भूल नहीं सकेंगे। और एक मिसाल देता हूं। अच्छा, कांट वर्ड होता है, CANT। ये कांट वर्ड का मतलब, ये भी जीआरई का वर्ड है, इनसिंसियर टॉक। ये जो हाइपोक्रेट्स लोग जो है ना बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, तो इनसिंसियर टॉक्स करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आई कांट टॉक लाइक हाइपोक्रेट्स, आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मैं सीधी बात कर देता हूं, ठीक है। इस तरीके से आप जुमला बना लें तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो आई कांट डू दिस एक्ट, कौन सा एक्ट जो हाइपोक्रेट करते हैं, किसी की इनसिंसियर टॉक करते हैं। दूसरा मिसाल दे देता हूं, टीटोटलिज्म। अब ये 2013 की सीसी में भी वर्ड आया था और मेरा याद किया हुआ था इस लिंक के साथ, तो मुझे आज तक याद है। मिसाल दे देता हूं कैसे। अब देखें इसको ऐसे कर ले, टी जो चाय पीने वाली है, टोटल मींस टोटल, कि ये बंदा जो है ना टोटली चाय ही पीता है, चाय का ही नशा करता है और कोई नशा नहीं करता। मतलब ही रेफरेंस फ्रॉम अल्कोहल।
तो इसका मतलब ही ये है टीटोटलिज्म का कि जो कंप्लीटली अल्कोहल को यूज नहीं करता, तो याद कर लें वो टोटली टी पीता है और कोई नशा नहीं करता, चाय का ही नशा करता है। इस तरीके से अब आपने देखा कि आपको कितनी बुकें याद हो रही है अगर इस तरीके की लिंक्स। और लेट मी टेल यू, देखिए एक तो मेरे एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ चीजें हैं, कुछ कॉमन एग्जिस्टिंग नॉलेज जो आपके पास भी है मेरे पास भी है, लेकिन ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तब बनेगी जब आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी उससे लिंक करेंगे इन चीजों को, ठीक है। तो आप अपनी मेमोरी के साथ इससे ज्यादा फायदा ले सकते हैं, ठीक है। और होपफुली कि आपको आज का ये लेक्चर समझ आ गया, और आई विल कम ऑन डिफरेंट पार्ट्स के वो के बाकी जीके के डिफरेंट पोर्शंस जो आपके स्टैटिक जीके है, नॉट करंट जीके, स्टैटिक जीके जो आपके पेपर में आती है।